Very good morning to all of you. Welcome you all in class 12 economics. So as you already know that we have completed whole syllabus of economics. That is, we have already discussed the macroeconomics, the whole chapter, as well as Indian economic development. So from the previous few months actually, so we are continuously revise all the chapters. We have done numbers of the numerical questions related to the income determination and the multiplier, as well as national income. Simultaneously, we have also discussing the some theoretical part of your macroeconomics like balance of payment, foreign exchange rate, the concept money, banking, monetary policy, fiscal policy, excess demand, deficient demand, and so on. Okay, but from the previous few classes, we were started to revise the calculate or the solve the some previous year paper. So first of all, we have discussed about the previous year, in which first of all we have discussed the sample paper which is issued by the CBSE in 2020, October 2020, and after that we have discussed the previous CBSE examination paper 2020, and next we have discussed CBSE examination paper 2019, which is already came in the 2019, and in that years the Indian economic development is not included in class 12. It were in the actually in the class 11th. Okay, so in the class 12 the students studied the chapter like book like microeconomics and the macroeconomics. Okay, so from the previous few classes we were started to solve the previous year question paper which is related to the different year like 2014, 15, 16, 17, different questions from the different chapters, as well as these questions which is related to the numericals as well as theoretical part. Okay, so in today's class also we will study some numerical questions as well as theoretical part of the your economics. So let's get started. Okay, so start करते हैं. So the question is given here, that is, if the this question is already came into Delhi 2008 C, set C. So question is, if the value of APC is average propensity to consume. So what will be the value of APS? It's so simple, na? What will be the value of APS? APS is average propensity to save. So how we calculate the APC? APC हम कैसे calculate करते हैं? APC को हम लोग calculate करते हैं APC equal to C upon Y, consumption upon income. और APS को कैसे calculate करते हैं? S upon Y, means saving upon income. ये consumption upon income होता है, ये saving upon कि हमारी income कितनी income है और उस income में हम कितना consumption कर रहे हैं और कितना उसकी saving कर रहे हैं. ठीक है, तो ये हो जाता है आपका APC एंड APS. तो हमें इसका फॉर्मूला पता है, सॉल्यूशन हम लिखते हैं दैट APC प्लस APS इक्वल टू 1. ठीक, APC प्लस APS वो किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है. ठीक है, यहाँ पे आपको किसकी वैल्यू दी है? APC की. APS कैलकुलेट करना है. सो APS इक्वल टू 1 minus APC. So APS equal to 1 है minus 1.5. ठीक,
सो एपीएस की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे आप देखो एपीएस क्या हो रहा है, सेविंग, सॉरी इट विल बी एपीसी, wait, it will be APS, sorry, it will be APS, so APS will be minus 0.5। तो ये हो गया आपका आंसर जो आपके 2008 में दिल्ली के पेपर में आया था सी सेट में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है ना कि एपीसी प्लस एपीएस क्या होता है, वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, सो कह रहा है कैन एपीएस एवर बी निगेटिव, क्या कभी एपीएस निगेटिव हो सकता है, इफ यस गिव एन एग्जाम्पल। कि अभी हम लोगों ने एक एग्जाम्पल देखा कि यहाँ पे निगेटिव हो सकता है। यस, एपीएस कैन बी निगेटिव इन सिचुएशन व्हेन एस इज निगेटिव व्हेन कंजप्शन एक्सीड्स द इनकम। जब कंजप्शन क्या हो जाता है, एक्सीड कर देता है इनकम को, इस केस में सेविंग क्या हो जाती है, सेविंग विल बी निगेटिव। ठीक है, जिस केस में कंजप्शन क्या है, कंजप्शन इनकम से ज्यादा हो जाता है। अगर इनकम हमारी 100 हो रही है तो हम कंजप्शन कितना कर रहे हैं, 150 कर रहे हैं। उस केस में जो आपका सेविंग हो जाती है, क्योंकि हम लोग डिस सेविंग करते हैं, जो पुराना कुछ सेविंग किए हैं उसको विथड्रॉ करके हम लोग अपना कंजप्शन करते हैं। ठीक है, तो सेविंग क्या है, वो निगेटिव हो सकती है, बट कंजप्शन एपीसी कैन नेवर एवर बी निगेटिव। कभी हमारा एपीसी 0 नहीं हो सकता, एपीसी हमारा कंजप्शन कभी भी निगेटिव भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी इनकम कुछ हो ना हो, हमारी इनकम 0 भी होती तो भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, तो क्या है, उनकी इनकम क्या है, वो तो कुछ भी अर्न नहीं कर रहे, बट उनका क्या कंजप्शन 0 है। दे ऑल आर डिपेंडेंट बट दे कंज्यूम समथिंग, वो कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दैट इज yes, the question is assuming that increase in investment is rupees 1000 crore and MPC is 0.9, एक्सप्लेन करना है आपको वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। मतलब आपको यहाँ पे समझ लो कि इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट आपको दे दिया है डेल्टा आई दैट इज 1000 और एमपीसी आपको 0.9 दे दिया है। आपको वर्किंग ऑफ द मल्टीप्लायर बताना है। एकदम सिंपल है कि डेल्टा आई अगर आपको दे दिया है 1000, एमपीसी दे दिया है 0.9, तो इसका क्या मतलब हो गया, जितनी हमारी इनकम एमपीसी हम कंजप्शन कितना करें 0.9, एमपीएस कितना हो गया 0.1 हो गया। फिर वही चीज आपका जो भी हम लोग वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर पढ़ रहे थे, वो 20 को हम लोग डिवाइड करते थे 10, फिर यही 10 क्या होता था आपका इनकम होती थी, फिर इस 10 का 5, फिर इस 5 का क्या करते थे 2.5। यही जो प्रोसेस है, इसका एग्जाम्पल हम लोग 1000 से ले लेंगे, 0.9 है तो 0.1, मतलब अगर हम लोग का 900 क्या हो जाएगा एमपीसी और एमपीएस क्या हो जाएगा आपका 100, फिर ये 900 चलेगा, 900 का ये प्रोसेस आपका कंटिन्यू, इसलिए आपका एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को लेके आप एक्सप्लेन कर सकते हो मल्टीप्लायर की। ये आपका दिल्ली 2017 में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, फिर कह रहा है दैट इज an economy is in equilibrium from the following data about an economy, calculate autonomous consumption। यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑटोनॉमस कंजप्शन को कैलकुलेट करना है। सो क्वेश्चन ये कब आया आपका दिल्ली 2017 में। राइट, क्वेश्चन है एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम, is in equilibrium from the following data about an economy
about an economy, calculate autonomous consumption। आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है? ऑटोनॉमस कंजप्शन को कैलकुलेट करना है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या दे रही है? वाई इनकम दे रहा है ₹5000, एमपीएस दे रहा है, एमपीएस विल बी 0.2 एंड आई दे रहा है दैट इज ₹800। जब ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है सो यू हैव टू कैलकुलेट दी ऑटोनॉमस कंजप्शन। यहाँ पे आपको क्या करना है? जब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे है, अबाउट एन इकोनॉमी कैलकुलेट क्या करना है? ऑटोनॉमस कंजप्शन कैलकुलेट करना है। जब इनकम क्या दिया है? 5000 दिया है, एमपीएस 0.2 दिया है एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज गिवन ₹800। सो वी हैव टू कैलकुलेट दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन कैलकुलेट करना है। ओके, तो इसका देखते हैं हम लोग। देखिए आपको यहाँ पे क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है? इनकम दिया है, एमपीएस दिया है, आई दिया है और ऑटोनॉमस कंजप्शन कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है y इक्वल टू क्या होता है? c प्लस आई। इनकम इक्वल टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट होता है। यहाँ पे आपको एमपीएस की वैल्यू दी है तो एमपीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस एमपीएस। तो क्या हो गया? 1 माइनस एमपीएस कितना है? 0.2। तो एमपीसी की वैल्यू हो गई 0.8, राइट? तो y हमारे पास वैल्यू दी है दैट इज वेयर इज द क्वेश्चन? ओके, इनकम दिया है हमारा 5000, ठीक है ना? हाँ, तो 5000 लिखते हैं इधर। 5000 इक्वल टू इसका सी बार प्लस बी वाई प्लस आई। ठीक, देन 5000 इक्वल टू सी बार हमें कैलकुलेट करना है। बी आपका एमपीसी 0.8 इंटू ये क्या हो गया आपका वाई दैट इज 5000 प्लस आई। सॉरी, आई की भी वैल्यू इज गिवन ना 800। ठीक, अब हमें क्या करना है? यहाँ पे 5000 हो गया, सी प्लस ये कितना हो गया आपका? दैट इज ओके, सो इट विल बी योर 5000 इंटू 0.8 दैट इज 4000। 5 8 जा 40, 4000 प्लस 800। ठीक है, तो अब इसको करेंगे 5000 इज इक्वल टू 4800 सी, देन 5000 माइनस 4800, ये कितना हो गया? 5000 माइनस 400 200 दैट इज सी बार इक्वल टू ₹200। ये इट इज गिवन इन करोड़? नो। तो ऑटोनॉमस कंजप्शन आपका कितना हो गया? ₹200। ठीक है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ था नहीं इसमें। इसमें आपको बेसिकली यही देखना है कि क्या क्या इंफॉर्मेशन इज गिवन और थ्रू विच व्हाट वी कैन कैलकुलेट, हम क्या यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको पता है सारी इंफॉर्मेशन आपको वाई दिया हुआ था दैट इज इनकम दिया हुआ था, एमपीएस दिया हुआ था और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दिया हुआ था। सो वाई इक्वल टू सी प्लस आई, ये हमें एकदम अच्छे से पता है। तो वाई मतलब इनकम इक्वल टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। हमें पता है इनकम इक्वल टू कंजप्शन प्लस सेविंग होता है। दैट मीन्स अगर हमें इनकम मिल रही है या तो हम कंज्यूम करेंगे या तो हम उसको सेव करेंगे। तो एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? एस इक्वल टू आई होता है। सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल होता है, तो यहाँ पे हम लोग सी प्लस आई कर देते हैं। देन आपके पास इनकम की वैल्यू दी हुई थी 5000। कंजप्शन फंक्शन को हम लोग क्या लिखते हैं? सी बार प्लस बी वाई। सी बार यहाँ पे ऑटोनॉमस कंजप्शन, बी इज हियर एमपीसी, वाई इज नेशनल इनकम प्लस आई दैट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। 5000 इक्वल टू सी बार हमको इसी की ऑटोनॉमस कंजप्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, प्लस 0.8 इंटू 5000 प्लस 800। सो 5000 इक्वल टू सी ऑटोनॉमस कंजप्शन
plus 0.8 into 5000 that is 4000 plus 800. So 5000 is equal to हो गया, आपको इसको सम कर दोगे तो 4800, then 5000 minus 400 कितना आया 200, तो ऑटोनॉमस कंजप्शन विल बी 200. ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं. So next question that we are going to study or calculate, so it will be from your national income. नेशनल इनकम से होगा तो वी नीड मोर स्पेस, हमें ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होगी. ठीक है, हमें ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होगी, तो क्वेश्चन एक डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड. ओके, सो क्वेश्चन इज गिवन हियर. इट इज ऑलरेडी केम इन दिल्ली 2011 का क्वेश्चन है ये. ठीक है, कह रहा है कैलकुलेट एनवीए एट एफसी. एनवीए एट फैक्टर कॉस्ट आपको यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेट करना है. ठीक है, सो इंफॉर्मेशन हम लोग यहाँ इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन. तो पहला क्या है, एनएफ नेट फैक्टर इनकम, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कंटेंट एंड इट इज गिवन इन रुपीज इन crores. Okay, so दिया है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. इनकम टू अब्रॉड. Next one is sales. Third is purchase of intermediate goods. Purchase of intermediate goods. Intermediate goods. Next क्या होगा, fourth will be depreciation. Fifth is export. एक्सपोर्ट्स दिया है. ठीक, नेक्स्ट है आपका आईटी इनडायरेक्ट टैक्स. एंड लास्ट वन इज सेवेंथ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ. सेवेंथ है आपका चेंज इन स्टॉक. क्वेश्चन दिया है, वैल्यूज उसको ले लेते हैं. वैल्यूज आपकी फैक्टर इनकम 30, सेल्स है 3500. नेक्स्ट है आपका परचेज ऑफ इंटरमीडिएट इज 2000. कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल दैट मीन्स डेप्रिसिएशन कितना दिया है 500. एक्सपोर्ट दिया है 400. इनडायरेक्ट टैक्स दिया है 350 एंड चेंज इन स्टॉक इज 50. ये इंफॉर्मेशन इज ऑलरेडी गिवन, आपको ये सारी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. एंड यू हैव टू कैलकुलेट हियर नेशनल एनवीए एट फैक्टर कॉस्ट. हमें यहाँ पे एनवीए एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है बाय द प्रोडक्ट मेथड. सो प्रोडक्ट मेथड. ओके, सो प्रोडक्ट मेथड से हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं, जीवीओ एमपी. जीवीओ एमपी से क्या होगा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. ठीक है, सो जीवीओ एमपी आपका हो गया, सेल्स कितना दिया हुआ है 3500. Change in stock 50. So it will be 3550 rupees in crores. Next हम कैलकुलेट करेंगे GVA MP. So क्या होगा, GVO MP माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन. So GVO MP आपका हो गया 3550
इंटरमीडिएट कॉस्ट क्या है, परचेज ऑफ द इंटरमीडिएट गुड्स, दैट इज 2000. सो ये हो गया आपका 1150. नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे एनबीए एट एफसी. सो जीबीए एट एमपी नेट निकालना है तो माइनस डेप्रिसिएशन, एफसी निकालना है तो माइनस एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स. ओके, सो जीबीए एमपी आपका क्या दिया हुआ है 1550. depreciation is 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 is 500. NIT क्या है 350. सो ये कितना आ गया 1550, 850. 7. So the answer is yes. आपका आंसर आ गया 700. So NVA at factor cost is equal to rupees 700 crores. So it is your answer. ठीक है, कैसे आया, एकदम सिंपल सा है, सारे स्टेप्स को फॉलो करते जाइए, आंसर निकलता जाएगा, कुछ भी टिपिकल नहीं है, बस आंसर हमें निकालना है. कैसे निकला आंसर, एकदम सिंपल सा है कि आपके पास सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है. आपको यहाँ पे एनवीए एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है, प्रोडक्ट मेथड से निकालेंगे क्योंकि एनवीए निकालना है, वैल्यू एडेड निकालना है. तो प्रोडक्ट मेथड से सबसे पहले हमको क्या करना होता है, जीवीओ एमपी निकालते हैं. जीवीओ एमपी कैसे निकलता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. तो सेल्स आपका दिया हुआ है, सेल्स है आपका 3500 और चेंज इन स्टॉक इज गिवन दैट इज 50. उसको सम करेंगे तो कितना आ जाएगा रुपीज 3550 करोड़. जीवीएमपी निकालेंगे, जीवीएमपी विल बी जीवीओएमपी जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया माइनस आईसी इंटरमीडिएट कॉस्ट. तो जीवीएमपी हमारा 3550 है. आईसी हमारा दिया, देखिए थर्ड पॉइंट पे देखिए परचेज ऑफ द इंटरमीडिएट गुड्स. जो भी इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं वो हम लोग कभी भी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में इंक्लूड नहीं करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. सो 3550 minus 2000, so it will be 1550 rupees in crores. Next we will calculate the value of NVA at factor cost. NVA at factor cost is equal to GVMP जो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है. हमें नेट कैलकुलेट करना है तो ग्रॉस में से हम माइनस करेंगे और यहाँ पे फिक्स कॉस्ट हमें कैलकुलेट करना है, फैक्टर कॉस्ट हमें कैलकुलेट करना है और हमारा जो वैल्यू दिया है वो एमपी में दिया है. सो फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे. फिर जीवीएमपी इज 1550, डेप्रिसिएशन इज माइनस 500. एनआईटी आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया नहीं हुआ है, सब्सिडीज इज नॉट गिवन हियर. सो ओनली आईटी इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है. तो हम लोग 1550 माइनस 500 माइनस 350 कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका कितना आ गया रुपीज 700 करोड़. सो इसके थ्रू हम लोगों ने क्या किया, एक क्वेश्चंस को किया जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है आपका एनवीए एट फैक्टर कॉस्ट इज रुपीज 700 करोड़. राइट, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. इसको समझेंगे तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, बस हमें पता होना चाहिए कि क्या कौन सी वैल्यूज को लेना है. देखिए एक आपके इसी क्वेश्चन में नेट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड इज ऑल्सो गिवन. सो आप ये जान लो कि ज़रूरत नहीं है उसकी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टर्म्स दिए होंगे जो आपको यहाँ पे कंफ्यूज करेंगे, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है उस केस में. ठीक है, ये हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं. फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट एनवीए एट एफसी. यहाँ पे भी आपको ये ऑल इंडिया, ऑल इंडिया 2011 का क्वेश्चन है. यहाँ पे कैलकुलेट करने को कह रहा है एनवीए एट एफसी. राइट, इंफॉर्मेशन है सेल्स रुपीज इन करोड़ पे ही दिया हुआ है. ठीक है, 500
परचेज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज 350, ओपनिंग स्टॉक इज गिवन 60, IT दिया है 50, डेप्रीसिएशन इज गिवन दैट इज 90, इंपोर्ट दे रहा है, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल 85 एंड क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन दैट इज 80। ठीक है, जो लास्ट फॉर्मूला था उसी के हेल्प से हम लोग करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग GVO एट MP निकालेंगे। तो क्या होगा आपका सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, और चेंज इन स्टॉक यहाँ पे एग्जैक्टली नहीं दिया है, तो चेंज इन स्टॉक हम लोग कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो सेल्स यहाँ पे कितना है 500 प्लस क्लोजिंग कितना है 80, ओपनिंग है 60, तो ये हो गया आपका 500 प्लस 20, 520 रुपीज इन करोर्स। नेक्स्ट हम निकालेंगे GVA एट MP। तो GVO एट MP माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, सो 520 माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट कितना दे रखा है 350, सो 520 माइनस 350, 5 6 7 8 9 10 11 12 yes 170 रुपीज 170 करोड़। ठीक है, अब नेक्स्ट होगा हमारा BA एट FC एंड BA एट FC। सो GVA एट MP माइनस डेप्रीसिएशन माइनस NIT। सो GVA MP 170, डेप्रीसिएशन कितना दिया है 90, ओके, डेप्रीसिएशन कितना दिया है 90। नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपको देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है IT दैट इज 50, सो ये कितना हो गया 170 माइनस 9 10 11 12 13, 9 10 11 12 13 14, सॉरी इट विल बी 40, 140 हो गया। सो अब हम लोग लिखेंगे NBA एट FC इक्वल टू 170 माइनस 140 दैट इज रुपीज 30 करोड़। सो दिस विल बी योर आंसर, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, क्या हो गया रुपीज 30 करोड़ आपका आंसर आ गया। ये जो वैल्यूज दी थी वो आपका रुपीज इन करोड़ मिल गया था, राइट, और ये आपके पर्टिकुलर्स होते हैं, यू नो वेरी वेल। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है, कुछ भी क्वेश्चन में है नहीं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको उसको कैलकुलेट करना आना चाहिए। क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन थी यहाँ पे क्या क्या इंफॉर्मेशन थी, सेल्स दिया था, परचेज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, ओपनिंग स्टॉक, इनडायरेक्ट टैक्स, डेप्रीसिएशन, इंपोर्ट ऑफ द रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीजें दी होंगी। जब यहाँ पे डोमेस्टिक सेल्स दिया होता है तब हम लोग इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल को माइनस करते हैं, बट यहाँ पे ऑलरेडी सेल्स दिया है तो हमको उससे कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे ऐसे आइटम्स होंगे जो आपको कंफ्यूज करने के लिए भी हों, सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे हमने क्या किया, GVO MP हमें कैलकुलेट करना था। GVO MP हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स आपका कितना दिया हुआ है 500 प्लस चेंज इन स्टॉक हमको निकालना होता है। चेंज इन स्टॉक हम कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, जो भी क्लोजिंग है और उसमें से हम लोग ओपनिंग माइनस कर लेते हैं तो क्या आ जाता है हमारा चेंज इन स्टॉक। सो 500 आपका सेल्स दिया था, क्लोजिंग कितना है आपका देखिए लास्ट वन इज 80 दिया है, माइनस हम लोग करेंगे ओपनिंग दिया है 60, 80 माइनस 60, सो 500 प्लस 20, सो इट विल बी रुपीज 520 करोड़। नेक्स्ट है आपका GVA एट MP कैलकुलेट करेंगे। GVA MP कैसे कैलकुलेट होता है, GVO MP माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। सो 520 आपका यहाँ पे GVO MP दिया है माइनस 350 आपका IC दिया है, 170 करोड़ आपका कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे NVA एट
DFC जो हमें कैलकुलेट करना है क्वेश्चन में, GVA एंट्री माइनस डेप्रीसिएशन माइनस NIT आपका इनडायरेक्ट टैक्स दिया, दैट विल बी 50, सो 170 माइनस 90 माइनस 50, 170 माइनस 140, सो रुपीज 30 करोड़। सो दिस वन इज योर आंसर, जो आपका ऑल इंडिया 2011 में 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया था। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट योर टुडेज क्लास। वी विल कंटिन्यू टू डिस्कस और डिफरेंट questions of the previous year paper in the next class also. Thank you.